Morning, student. Hello, student. Are you hearing me? Sir, good morning, sir. Hello, people. Screen is visible now. So, last lecture I have discussed about first come first serve. Okay, and I have taken 2 or 3 examples. So I think you people have gone through with the FCFS and practice some questions. So today I'm going to start shortest the first serve. Okay, so definitely it is a greedy algorithm. Greedy algorithm means that greedy का जैसे मतलब ही होता है लालची टाइप का, ठीक है। तो क्या है कि the process which have less uh, less CPU burst. Okay, the process which is taking very much less time to execute will be executed first. Okay. ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होता है, ठीक। राहुल कुमार, आई गॉट द मैसेज, बार बार मैसेज ना करो, ठीक है। तो SJFS में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में द प्रोसेस व्हिच एंटर्स इनटू द सिस्टम firstly it will be executed. Okay, so according to the arrival, the in first FCFS, according to the arrival, the execution process is done. But in shortage of first sub means that the operating system checks whose process have less less burst time. Okay, the process who is taking very much very less time to execute will be executed first. So uh, we will sort the process according to their burst time, and according to that burst time the process will be executed. Okay, so that's why it is called gradual sorting. Sort all the process according to the arrival time, then select that process which have maximum minimum arrival time and minimum burst time. I will take both the example where arrival time and burst time also given. Okay, after completion of process, make a pool of process which after till the completion of previous processes, and select the process among the pool which is having maximum minimum burst. Okay, so this is the shortage of first. इसके डिसएडवांटेज मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है। तो अब देखो क्या है कि एज आई टोल्ड यू दैट shortage of first execute the process which has the lesser execution time or lesser burst time. So this is the example given here. You can easily see that P1 have burst time 6, P2 have burst time 8, P3 have burst time 7, and P4 have burst time 3. Okay, so all are entered. It is assumed that all are entered into the system, and the process which have the less burst time will be executed first. So here you will easily see that
process P4 have very less time, that is 3. Then P1 have burst time 6, P2 have burst time. So it means that P4 will be executed first, then after P1 will be executed, then after P3 will be executed. Okay. Then lastly, P8 will be executed. Clear? So firstly, what you will do? You will create a Gantt chart. Okay, I have told you what is Gantt chart. Okay, so now as you see that P4 have very less burst time, so it will be executed first. Okay, and in Gantt chart, P4 is showing first position. Okay, and it will be executed first. So its starting time is 0 and completion time is 3. Then P1 will be executed. It will start from time 3 and end with 3 plus 6, it means 9. इसका completion time कितना हो जाएगा 9. So P1 will be executed in second position and then third P7 और इसका जो completion time हो जाएगा 16 और P2 का 4. तो अब देखो इसका एवरेज टाइम कितना हो जाएगा. एवरेज टाइम देखो P4 का 0 होगा, ठीक, P1 का 3 हो जाएगा, P3 का कितना हो जाएगा, P2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, P3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक, और P4 का 0 है. ठीक है, क्लियर है. तो आप इसका एवरेज ले लोगे तो यू विल गेट 7. ठीक, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई. हाँ, तो अब देखो क्या है, बहुत इजी सा है. ठीक है, लेकिन होता है कि इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है. ठीक, तो देयर इज सम ट्विस्ट इन एवरी क्वेश्चन एंड यू हैव टू keep your mind calm and you have to think how to proceed. Okay, now moving to next slide and next point. अब ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है. ठीक, तो अब देखो क्या है कि जैसे हमने आपको बताया है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट. शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या है कि द प्रोसेस व्हिच हैव द lesser time or lesser burst time, it will be executed first. Okay, so here firstly we have assumed that all processes are entered into the system. Okay, if arrival time is not given, then they will assume that the all processes are entered into the system. But if the process arrival time is given, then we have to take extra care. Okay, so and and when arrival time is given, so we have to check the bus time as well as arrival time. Okay, तो हमने आपको पहली स्लाइड में बताया था यहाँ पे कि select the process which has the minimum arrival time and minimum bus time. ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब देखो क्या है कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि द प्रोसेस विच हैव द मिनिमम अराइवल टाइम. तो मिनिमम अराइवल टाइम क्या है 0. अब देखो क्या है कि अगर इफ द अराइवल टाइम इज नॉट गिवन, देन P2 will be executed first. Okay, then P4, then P1, then P3. But now here arrival time is given, it means P1 is entered into the system. Okay, P1 is entered into the system. Then after P2, P3, P4 come, it means that you have to use, you have to pick the process which have the minimum arrival. Okay, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे ही आपने क्या किया, P1 को एग्जीक्यूट किया, ठीक, P1 को एग्जीक्यूट किया एंड द फॉर कितने सेकंड के लिए, जैसे ही 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, P2 comes into the system. ओके, P2 आ गया. अब P2 आ गया, अब यू विल चेक. क्या चेक करोगे कि इसका बस टाइम P1 से कम तो नहीं है. ठीक, अब P1 का बस टाइम अब बचा कितना, 1 सेकंड इज
executed. Okay, so it means bus time of P1 is now 7 and P2 is 4. तो अब आप देखो कि किसका बस टाइम 4, बस टाइम कम है, P2 का बस टाइम कम है, तो now P2 will be executed here. Okay, okay, as its bus time is minimum of among all. Okay, so it means P2 will be executed completely. Okay, P2 will be executed completely. So it will start with 1 and complete at 5. 1 plus 4. Okay. अब देखो क्या है कि now 5 seconds have been passed and the maximum arrival time is 3. It means all process has entered into the system. All process has entered into the system. So now कौन कौन से प्रोसेस रह गए अब देखो, इसका बस टाइम 7 बचा, इसका बस टाइम 9 ही है, ठीक, इसका बस टाइम 5, ठीक, P4 is completely executed. So अब क्या होगा, P1 P2 के बाद कौन आएगा, इंटर करेगा, the process which have the lesser time. So P4 have the lesser time, so it will be executed here. Okay, so P4 will be executed here. Clear? For what time? For 5 seconds. So it starts with 5 and complete with 10 seconds. Okay. Then after P1 is now completed. Then there are two process. P1 has 7 seconds. P3 has 9 seconds. So P1 will be executed here. Okay. And it will start with 10 and complete with 7. Okay. क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट में P3 हम एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट विद 17 और उसमें हम क्या करेंगे, 9 ऐड कर देंगे, उसका बस टाइम तो 20. क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो क्या है, अगर इफ देयर इज प्रीएम्पशन, अब देखो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि P2, P4, P1 and P3, these 4 process are executed in non-preemptive manner. Means one process enter into the system and when it start executing, no other process can executed by processor. Okay, so it is non-preemptive, but here you can easily see that P1 have burst time 8. It is executed for 1 second, but it is preempted and P2 get the chance to execute. Okay, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रीएम्पशन है और ये सारे क्या है, नॉन प्रीएम्पशन. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इफ देयर इज अ प्रीएम्पशन then it is called shortest remaining time first, SRT. Okay, then it is called shortest remaining time first, SRT. If it is non-preemptive, then it is called SJFF. But if it is preemption, if there is a preemption, then it is called shortest remaining time. Clear है? अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ ले. राहुल तिवारी, रोल नंबर 85. राहुल तिवारी, देखो अगर बोलोगे नहीं तो मैं एब्सेंट कर दूंगा, बता दे रहा हूँ, इसलिए क्लास में बिल्कुल सही से बैठो. मैं जिसका नाम लूं अगर नहीं होगा तो मैं एब्सेंट कर दूंगा. राहुल तिवारी, रोल नंबर 85. कोई प्रॉब्लम? सुंदरम ओझा, रोल नंबर 114. सुंदरम ओझा,
roll number 114 and roll number 2. roll number 80 Priya Agrawal. roll number 80 Priya Agrawal. roll number 80 Priya Agrawal नहीं है, ठीक है। roll number 64 इस्माइल खान। यस सर। जगह वो, चलो बताओ, समझ में आ गया ये? यस सर। सर इसमें सर एक चीज पूछना था कि जैसे अरे सर तो जो हम जैसे कह रहे थे P1 कि पूछो, तो क्यों नहीं पूछ रहे थे? मैं एक एक को सर जैसे पकड़ के पूछ रहा हूं। हाँ, चलो हाँ पूछो। जैसे सर P1 को मतलब स्टार्ट कर दिया एक तरह से, मतलब है ना। तो सर जैसे P1 हो गया, फिर P2 हो गया, फिर P3 P4 को अगर हम कर देते हैं, फिर उसके बाद जितना बस टाइम बचता है एंट्री के बाद, सर वैसे भी कर सकते हैं कि सर ये ऐसे भी कर सकते हैं मतलब? नहीं हम समझे नहीं, फिर से बोलो। सर जैसे इसमें P1 को प्रोसेस किया हाँ, गया यहाँ पे, अराइवल टाइम का बस कम है, हमने यस सर। प्रोसेस किया जैसे ही, और हम चेक यस सर। करते रहेंगे। जैसे ही 1 सेकंड तो पास सर हुआ, P2 आ गया, ठीक। P2 का बस टाइम कम है तो P1 को प्रीएम्प्ट कर लिया जाएगा और P2 को चांस दे दिया जाएगा टू फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक। अब P2 को देखेंगे और यस सर। चेक सर करते जाएंगे। हाँ, अब जैसे क्या होता, P2 का हम मान लेते 6 होता या P2 का 7 होता, ठीक। तो जैसे ही क्या होता, P2 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होता, ठीक। क्या होता, P3 आ जाता, फिर 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करते, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो कितना हो जाता, 5, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि दोनों के 5 रहते हैं, तो P2 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ठीक। नहीं समझे? यस सर। यस सर, यही पूछ रहे थे सर कि हाँ, ठीक है। तो अगर हम क्या मतलब बस करेंगे? टाइम ज्यादा होगा और कम होगा तो उसको हाँ, रोक देंगे, हम प्रोसेस को लोग, प्रीएम्प्ट कर देंगे और दूसरे को हाँ, चला देंगे। बस बस बस, जब सारे प्रोसेस इंटर हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका बस टाइम कम है। नहीं तो जैसे जैसे प्रोसेस इंटर होता रहेगा और हम चेक करते रहेंगे सबसे, ठीक है, कि कौन से प्रोसेस का बस टाइम कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में इस तरह से ट्विस्ट करके पूछते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो हमें लगता है सबको समझ में आ गया, ना समझ में आया तो पूछ लेना इसको। आज मैं इसका 4 का ट्यूटोरियल लूंगा, उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। चलो अच्छा, नेक्स्ट उस पे आते हैं। हम्म, चलो ये क्वेश्चन तुम लोग करो, बताओ। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का ही है, सेट ऑफ 5 प्रोसेस विच अराइवल टाइम एंड बस टाइम इज गिवन, ठीक। ये करो जरा। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, अराइवल टाइम सबसे कम किसका है, P4 का। तो P4 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक। P4 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक। यहाँ पे P4 का अराइवल टाइम सबसे कम है तो एग्जीक्यूट है, ठीक। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है, बताओ ये कैसा ही है कि गलत है, ये बताओ। सर इसमें सर गैंट preamble चार्ट सर गलत दिया है। गैंट चार्ट गलत बना गलत है। दिया। हाँ यस गलत, सर, गलत है सर। अब सही बनाओ इसको और इसका वो कैलकुलेट करो, मैं भी बनाता हूँ तब तक। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है,
कि जो अगर ये SJFS यूज कर रहे हो, एक चीज ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे ये क्या है ना, प्रियम्पटिव मोड, अगर कह दिया जाता है कि प्रियम्पटिव मोड में करो, ठीक है, तब तो ये सही है, ठीक है। और अगर कह दिया जाता है कि नॉन प्रियम्पटिव मोड में करना है, ठीक, तब ये क्या है, ये सही है, ठीक है। ये जो इन्होंने दिया है, ठीक, ये नॉन प्रियम्पटिव मोड में, मतलब क्या है कि आपको प्रियम्प्ट नहीं करना है। लेकिन SJFS में अगर प्रियम्पटिव मोड कह दिया गया है आपसे, ठीक, तो आपको क्या करना है, जैसे P4 आया तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि नॉन प्रियम्पटिव मोड में आप कर रहे हो, ठीक, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, दोनों चीजें, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, नॉन प्रियम्पटिव मोड में, मतलब ये SRTF नहीं है, ठीक है, ये SJFS है। तो अगर प्रियम्पशन अगर यूज करते हो, ठीक, तो अगर ये नॉन प्रियम्पटिव से ये सही है, प्रियम्पटिव वाला तुम लोग करो और बताओ कितना आएगा। ठीक है, बना। करो इसको। और मैं एक चीज और बता दूं, ये रोल नंबर 101 शिवम श्रीवास्तव, 95 साक्षी शुक्ला, 84 राहुल मौर्य और 110 सिद्धांत श्रीवास्तव और 93 रोहित शर्मा, ठीक। अगर ये लोग आंसर बताते हैं तब तो इनका मैं प्रेजेंट लगा दूंगा, ठीक, नहीं तो ये एब्सेंट है, क्योंकि ये इनका ध्यान अटेंडेंस पे ज्यादा है और पढ़ाई पे कम है। मैं फिर से नंबर बता दूं, 83 राहुल कुमार, 93 रोहित शर्मा, 110 सिद्धांत श्रीवास्तव, 84 राहुल मौर्य, 95 साक्षी शुक्ला और 101 शिवम श्रीवास्तव, 99 क्या नाम है, शाइनी चंद्रा। मैं इन लोगों के रोल नंबर नोट कर लिए, ये एब्सेंट है, नहीं तो अगर ये आंसर बताएं या डिस्कस करें तब तो मैं इनको प्रेजेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। चलो बताओ। और इसमें एक लोग और ऐड हो गए, शशांक पांडे और सुप्रिया पासवान, 97 ना 115। अरे कौन लड़की इसे हाँ चलो बताओ, इसका गैंट चार्ट कौन बताएगा। 84 101 110 83 93 97 115 और 99। इन रोल नंबर ने अगर डिस्कस किया तब तो मैं प्रेजेंट लगाऊंगा, अदरवाइज ये एब्सेंट है। चलो। अच्छा, अब मैं पहले इसको समझा दूं। देखो ये क्या है, SJFS है, कंप्लीट, ठीक। और क्वेश्चन में ये गिवन है, इसमें क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ, ये है नॉन प्रियम्प्टिव, मतलब क्या है, इसको हम प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक। नाम तो जो बताना है प्रोसेस ना। जो प्रोसेस इंटर हो चुका है, ठीक, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, वो प्रियम्प्ट नहीं किया जा सकता, ठीक। तो अब देखो क्या है कि P4 सबसे पहले आएगा और वो 6 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। जब 6 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब क्या है कि नाउ ऑल प्रोसेस आर इंटर इनटू द सिस्टम। अब कौन कौन बचे, P1 P2 P3 और P5, ठीक। तो P1 का कितना आएगा, बस टाइम 1 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, देन P3 एग्जीक्यूट होगा, देन P5 एग्जीक्यूट होगा, देन P2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है।
तो अब इसके हिसाब से देखो क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक। तो P1 का कितना हो जाएगा 7, कंप्लीशन टाइम है, अराइवल टाइम कितना है 3, तो 7 माइनस 3 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक। फिर P2 पे आओ, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है 16, उसका अराइवल टाइम कितना है 1, तो उसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा 15, ठीक। देन P2 का P3 का है 9 और उसका अराइवल टाइम है 4, तो 9 माइनस 4 5, तो टर्न अराउंड टाइम इस तरह से निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 5 और ये कितना हो जाएगा 8 मिनट। एवरेज वेटिंग टाइम P1 का कितना है, P1 का 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा, P2 का कितना है 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जो कंप्लीशन टाइम की एंट्री है माइनस अराइवल टाइम, ठीक। और वेटिंग टाइम में क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग टाइम है माइनस अराइवल टाइम वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ये नॉन प्रीएम्पशन के लिए सही है, ठीक। क्लियर है, ये नॉन प्रीएम्पशन के लिए सही है। अब इसको अगर हम कह दें कि सॉल्व इट विद प्रीएम्पशन मोड, अब करो, अब कोई किसी ने किया तो बताओ मुझे। किसी ने नहीं किया, कोई बताए। रोल नंबर 98 शेफाली तिवारी, चलो बताओ। रोल नंबर 98 शेफाली पूरी तिवारी। रोल नंबर 98 शेफाली तिवारी। क्यों, मानसी गुप्ता, रोल नंबर 59। यस सर। किया तुमने, यस सर। हाँ बताओ, पहले क्या आएगा, P1 P4, सर पहले P4 आएगा, हाँ वो 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक। सर फिर फिर P2 आएगा, P2 आ जाएगा, वो कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, सर वो सर P2 भी 1 सेकेंड के लिए, तो सर 0 से 1 P4, फिर 1 से 3 P2, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज ध्यान फिर देना, P2 हुआ, ठीक। P2 जैसे 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया, P5 इंटर कर जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि P2 का बस टाइम कितना हुआ 3, P5 का बस टाइम भी 3 है, तो P2 क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक। क्लियर है, मतलब यहाँ पे इसको प्रियम्प्ट नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का बस टाइम सेम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, P2 को 1 सेकंड और किया, अब आ गया यानी कि P2 को 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करें, तो 3 सेकंड हो गया उसका, ठीक है। अब देखो बस टाइम उसका बचा 2, P1 अब सिस्टम में इंटर कर चुका है, क्यों, क्योंकि 3 सेकंड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, P3 एग्जीक्यूट होगा, उसका बस टाइम 1 है, तो क्या हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, अब देखो क्या है कि सारे के सारे प्रोसेस इंटर हो चुके हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, P4 के बाद अब बचा किसके किसके पास, जो P1 है 0 हो गया बस टाइम, P2 का 2 बचा, P3 का 2 है और P5 का 3 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, P4 के बाद P2 को एग्जीक्यूट करा देंगे, फिर
P3 को एग्जीक्यूट करा देंगे, फिर P5 को एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक, तो किसी का एवरेज टाइम आया? सर एवरेज टर्न अराउंड टाइम 7 यूनिट आ रहा है और वेटिंग मतलब एवरेज वेटिंग टाइम 3.8 यूनिट। टर्न अराउंड टाइम कितना आ रहा है तुम्हारा? 7 यूनिट सर। और वेटिंग टाइम? और वेटिंग टाइम सर 3.8 यूनिट। एक मिनट, और किसी का इतना आ रहा है? तो एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं हम भी। वेटिंग टाइम 3.8 आ रहा है कि 4 आएगा? एक मिनट देख लो। और बताओ कोई लोग? चलो इसको अच्छा आज हम क्यूट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो समझ गए ना कि एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्वेश्चन अगर प्रीएम्प्टिव आ जाता है, ठीक, तो इसका मतलब एसआरटीएफ यूज करना है, ठीक है? और अगर क्या कहते हैं प्रीएम्प्टिव नहीं है, स्ट्रिक्टली लिखा है कि मतलब एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है यूजिंग नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफएस। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में मतलब क्या है कि जो हमारा क्या है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, P4 आएगा, ठीक, ये 0 और ये 1 तक जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगर प्रीएम्प्टिव यूज करते हैं तो देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे P4 के बाद P2 आ जाएगा, ठीक है? ठीक, अब P2 आ गया, अब P2 क्या होगा, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, ठीक, बचा उसके पास 3, ठीक है? और दूसरा प्रोसेस आ गया हमारे पास P5, ठीक है? और P5 के पास भी P3 बस टाइम है, तो हम P2 को कंटिन्यू करेंगे, 1 सेकंड के लिए फिर कंटिन्यू कराया, तो कितना बच गया, 2 एग्जीक्यूशन टाइम हो गया, ठीक है? ठीक है, 2 हो गया था, ठीक है? अब हो गया यहाँ पे 3, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, जब 3 हो गया अराइवल मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, तो 3 में P1 भी इंटर कर गया। P1 का बस टाइम क्या है, 1 है, तो यहाँ पे P1 आ जाएगा, ठीक? और 1 सेकंड के लिए है तो कंप्लीशन टाइम P1 का 4 हो गया, ठीक? इसके बाद कौन आएगा, 4 सेकंड हो गए। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 सेकंड हो गए पूरे के पूरे, ठीक है? इट मींस ऑल प्रोसेस आर इंटर्ड इनटू द सिस्टम, ठीक? क्लियर है? बात समझ में आ गई? सारे के सारे प्रोसेस इंटर हो गए। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि किसके पास कितना बचा, ठीक है? तो P1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक? P2 के पास कितना बचा, 2, P3 के पास भी बचा 2, P4 के पास बचा 5, ठीक है? और P5 के पास बचा 3, ठीक है? तो अब देखो क्या है, P1 के बाद क्या आ जाएगा, P2, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा, 6, P2 के पास 2 बचा था। इसके बाद कितना आ जाएगा, P3 आ जाएगा, ठीक? और ये कितना आ जाएगा, 8। इसके बाद कितना कौन आएगा, P5, ये हमारा P5 हो गया, ठीक? P5 के पास कितना था,
11 था, तो ये क्या हो गया 8 + 3 यानी कि 11 कंप्लीशन टाइम हो गया। एंड लास्ट में कौन बचा, P1 P2 P3 हो गया P4, ये P4 हो गया। और इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा 11 + 5 16। ठीक, तो अब देखो क्या है, जो एवरेज वेटिंग टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, P1 का कितना हुआ 3 माइनस P1 का 3 माइनस, यानी कि P1 का 0 ही रहेगा। ठीक, क्लियर है। देन अरे तुम लोग भी बोलोगे कुछ बच्चों, P2 का कितना हुआ, P2 देख लो यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, P2 का सर 1 होगा सर, 1 होगा सर P2 का P2 का वेटिंग टाइम। P2 का वेटिंग टाइम हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा खत्म। ठीक है, और 4 - 1 - 1 तो P2 का आएगा 2। ठीक है, 2 सेकंड के लिए वेट करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक बार इंटर हो चुका है ना, यहाँ पे बचा 4। ठीक, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे और 1 सेकंड उसका अराइवल टाइम, तो 4 - 1 - 1 तो 2 बचेगा इसका। ठीक, P3 का कितना हो गया 6 - 4 2 आ जाएगा। P4 का कितना आएगा 11 - 0 11 आ जाएगा। एंड P5 का 8 - 2 6। ठीक है, तो 4 और 11 4 10 21 डिवाइड बाय 4 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार चलो इसको कर लेना। ठीक है, इसको मैं भी इसको सॉल्व कर लूंगा और टर्न अराउंड टाइम इसी के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक, ठीक है, अब देखो क्या है कि जो SJFS का डिसएडवांटेज है, ठीक, डिसएडवांटेज ये है कि हमें फ्यूचर की बातें पता नहीं चलती। ठीक, क्लियर है, क्या फ्यूचर की बातें कि मतलब कोई प्रोसेस इंटर कर रहे हैं तो हाउ मच इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट। ठीक, क्यों नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि वो वेट करे आईओ के लिए और आईओ में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें फ्यूचर की नहीं मालूम। ठीक, तो इसलिए क्या है, इसकी जो सबसे वैसे क्या है कि इट गिव्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है फॉर शेड्यूलिंग, बट क्या है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें फ्यूचर की बातें नहीं पता है कि कोई एक प्रोसेस कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्या है कि अगर कोई कोई प्रोसेस है जो which have the largest बस टाइम, तो क्या होगा कि शॉर्टेस्ट बस जो बस टाइम वाला प्रोसेस इंटर करता जाएगा और वो एग्जीक्यूशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो इट मींस क्या है कि इट लीड्स टू स्टारवेशन। ठीक, priorities cannot be set for process with larger bus time have a poor response time। तो क्या है कि जो अगर बस टाइम जिसका ज्यादा होगा उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, तो दीज आर द सम डिसएडवांटेज, बट द मेन डिसएडवांटेज इज दैट it is not practically possible. Theoretically it is very good, okay, and it gives the best solution for scheduling, okay, but it is not practically possible. So this is the main advantage। और ये क्या है इसका एडवांटेज क्या है, इट इज ए ऑप्टिमल एंड गारंटीज द मिनिमम। अगर आप कंपेयर करोगे SJFS, priority, round robin, all type of algorithm, then you will find the minimum average waiting time in SJFS, okay। So this is the disadvantage and advantage part। क्लियर है, तो मैं आज ट्यूटोरियल में और इसके FCFS और SJFS के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अटेंडेंस तो सबने दे दिया है और मैंने जिनके नाम लिए हैं आज वो एब्सेंट है हमारी साइड से। ठीक है, रोल नंबर 114, रोल नंबर 85, 80, 97, 115, 110, 83, 93, 99, 95, 84 और 101। ठीक, ये हमारी साइड से एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग।